Hello everybody, welcome. My name is Abi. Today we will discuss some questions of the chapter that's name is Nationalism in India. And guys, you will find these all the questions on the page number 50. So guys, your first question of the page number 50, you will find there that question is list all the different social groups which joined the non-cooperation movement, non-cooperation movement of 1921. Then choose any three and write about their hopes and struggle to show why they joined the movement. So guys, we are discussing about the topic of the nationalism of India, and in which we will discuss the first question, or you can say discuss question. This is the first question: why all the social group they have joined the non-cooperation movement, and why they have hope that all the groups have joined this movement and struggle. What kind of the way they have choose, why they have choose this way to join this movement. So guys, the previous last video I have discussed illustrate you that simply you should be understand that how the non-cooperation movement had been started. So it was the method of the Mohandas Karamchand Gandhi, and who have used this method for the British government, and asked them that free our nation. So this was the significant and, or you can say, important step towards the freedom of our nation. So guys, simply you should be understand that what is the exact meaning of the non-cooperation movement, and in उर्दू यू कैन से तहरीक अदम तावन। और इसमें सबसे अहम रोल जो अदा किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तहरीक को, इस तहरीक को अदम तावन की तहरीक कहा जाता है, जिसको गांधी जी ने शुरू किया था। और इसमें तकरीबन तमाम क्लासेस के लोगों ने हिस्सा लिया था जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनमें से आप देखेंगे सबसे पहला एक मतलब इस महात्मा गांधी की शुरू की हुई तहरीक अदम तावन दो रुखी थी। इसमें दो जुज़ू में तकसीम किया गया, एक थी मसबत रुख और दूसरा था मनफी रुख। स्वदेशी को फ़रोग देना, ख़ास तौर से चरखा से बनी कई खादी पहनना, छूत छात को मिटाना, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, नशा और एशिया की मुखालफत और स्वराज फंड की वसूली तहरीक के मुबस प्रोग्राम में शामिल करना। सो गाइज, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें डिस्कशन किया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, वो ये था कि जो भी दो तरह के मसबत इसके रुख थे अदम तावन की तहरीक के, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन वाज इन विच यू विल फाउंड दैट वी शुड हैव नीड टू बाइकआउट द foreign things and improve and use the domestic things which had made by the spinning. And another was against the untouchability, that there should be no any type of the class, and in which there should be no discrimination among the classes, where we found untouchability, chhoot chat, and it should be eliminated by all means through the society. And we should unite, Hindu Muslim should be unite, and we should boycott the foreign things, and also we should cooperate, or we can say we should cooperate in the Swaraj Fund. So guys, we are discussing about the topic of list all the different social group. So how many groups or how many classes of the people they have joined the non-cooperation movement? So guys, before we discuss this question illustrately, what kind of the PDF form material I have provided you, or you are looking on the screen. So guys, here you will find that how many groups of the social they have joined in non-cooperation movement, and what kind of the struggle they have fight during towards this movement. So guys, the movement started with the middle class participation in the class. So सबसे पहले हमने मिडिल क्लास पीपल इसमें शामिल हो गए। कौन लोग? मिडिल क्लास पीपल ने ये इसमें शामिल हो गए। थाउजेंड्स ऑफ
thousands of students left control schools and colleges, headmasters and teacher resigned and lawyers give up their legal practice. So guys, सबसे पहला पॉइंट हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे समाज के जिन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया, और वो कौन कौन से थे। सबसे पहले कौन सा था, मिडिल क्लास लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। दूसरी बात में हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे। उन्होंने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने और यू कैन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किए थे, उन्होंने उससे रिज़ाइन ले लिया। पहला पॉइंट कौन था, मिडिल क्लास ने इस कॉपरेशन में अदम ताउन की तहरीक में हिस्सा लिया, मिडिल क्लास पीपल। सेकंड वन कौन से थे, जिसमें स्टूडेंट्स ने स्कूल को छोड़ा। थर्ड वन आप पाएंगे गाइज, जैसे जो भी एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स आर यू कैन से, जैसे टीचर्स थे, टीचर्स के बाद हेड मास्टर्स कॉलेज के उन्होंने छोड़ दिया। और जो लोग लायर्स वगैरह थे, जो वकील लोग थे, इन्होंने लीगल प्रैक्टिस को गिव अप किया, यानी इस काम को छोड़ दिया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे, जैसे द काउंसिल इलेक्शन वर बाइकाटेड इन द मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ द गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली फॉर द ब्राह्मण। सो आपने ये भी गाइज पाया कि थोड़ा बहुत काउंसिल ऑफ इलेक्शन को बाइकाट किया गया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे इसके इफेक्टेड पड़ गए। सो गाइज, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो सिंपली गाइज गांधी जी ने इस मेथड को इस्तेमाल किया था टू रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि हमको कोई भी कॉपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं करना है, चाहे वो किस भी एंगल से होगा, किस भी शोबा से वो वाबस्ता रखता होगा, हमें उनके साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करना है। तो यही आपका क्वेश्चन है कि आपने उन सोशल ग्रुप को, क्वेश्चन नंबर जो है लिस्ट ऑफ ऑल द, उन सोशल ग्रुप को, किस किस तरह के समाजी ऐसे ग्रुप थे, ऐसे ग्रोह थे जिन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। सो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 यूनाइट इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑटोक्रेसीज इन इंडिया। तो सबसे पहला पॉइंट जो था, जो 1921 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी, तो सबसे पहले तमाम हिंदुस्तानी जो वो एक हो गए, और इन्होंने जो ब्रिटिश की तानाशाही यहाँ पे राज चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल चलता था, उसके खिलाफ वो एक हो गए। और दूसरा, पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल ग्रुप जॉइंट गांधी इन हिज मूवमेंट। सो तो ऑल द क्लासेस ऑफ द नेशन दैट हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल ग्रुप्स वर एज अंडर। सो जो नीचे लिखे गए हैं वो ग्रुप्स जो थे, अहम थे, जिन लोगों ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इस तहरीक में हिस्सा लिया। तो सबसे पहले क्या था, कांग्रेस। मेंबर्स ऑफ कांग्रेस इंक्लूडिंग गांधी announced the non-cooperation movement. They hoped that loss in trade would force the British out of India. They lead protest all over the country. So पहला पॉइंट हमने देखा, कांग्रेस ने बहुत पार्ट प्ले किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दैट्स वाई बिकॉज you have witnessed, or you can say you found like such materials, or you can say like such information that the leader of the non cooperation movement was Mahatma Gandhi. So another social group was students and teachers. So guys, you have found that all the teachers, or you can say they are professors, teachers, they are college teachers, or you can say they are doing a job in education department, they all have resigned and students have boycotted this school. So the students body become a major force against the British during the non cooperation movement. Teachers mobilize the people for the cause while the students boycott the British educational system, burning their books in their protest. So student ने भी काफ़ी और टीचरों ने भी काफ़ी एक अहम रोल अदा किया। स्टूडेंटों ने बाइकाट किया स्कूल को, किताबों को जलाए, और टीचर्स ने रिज़ाइन दिया। और थर्ड वन क्या था आपका, वो था ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। जो लोग ताजिर थे, जो लोग सनत कारी करते थे, जो लोग बहुत बड़े बड़े ताजिर थे, डिस्पाइट फेसिंग लॉस इन देयर बिजनेस, इन्होंने इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा कि कितना हमको लॉस होता है। ट्रेडर्स और मर्चेंट ने बाइकाट ब्रिटिश गुड्स।
तो इन लोगों ने ब्रिटिश की चीज़ों को, जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ में, इनको बाइकाट किया। दे डिड नॉट सेल ब्रिटिश गुड्स इन द मार्केट, और उन्होंने ब्रिटिश की चीज़ों को जो एशिया बनाते थे उनको बाइकाट किया। एंड ओनली सॉलिड गुड्स दैट वर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन, देयर पर्पस वाज टू वीकन द ब्रिटिश मार्केट इन इंडिया। सो उसकी वजह से काफ़ी धचका लगा तिजारत, ब्रिटिश की तिजारत को, क्योंकि उन्होंने जो डोमेस्टिक घरेलू तौर पर जो चीज़ें बनाई जाती थी उनको इस्तेमाल किया। सो अदर सोशल ग्रुप्स और फार्मर्स ने भी काफ़ी पार्ट प्ले किया। फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, इंडियंस वर्किंग विद द ब्रिटिश, मुस्लिम लीडर्स ने भी काफ़ी इसमें अहम रोल अदा किया। उसके गाइज आपने देखा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया मैनी सोशल ग्रुप्स जॉइन द नॉन कॉपरेशन, ये आर में आएगा। लेकिन गाइज देखो, जो ऊपर मैंने आपको इलस्ट्रेटिव, आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हो। टू कंक्लूड, सिंपली आपने लिखना है टू कंक्लूड दिस टॉपिक वी कैन से दैट देयर आर सो मेनी social groups that they have joined the non-cooperation movement. So first one was middle class people. Middle class में these class include students, teachers who were joined this movement. They were asked to come forward and boycott the foreign goods. तो सबसे पहले आपने क्या देखा, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग पाए जाते थे, स्टूडेंट्स और टीचर, और जिन लोगों ने उनकी मतलब सनत व हरफत को, जो कुछ भी वो इम्प्लीमेंट, उन्होंने तमाम चीज़ों को, कॉलेजेस को बाइकाट किया, उनको जॉब वगैरह जो कुछ भी थे वो रिज़ाइन किया। सेकंड वन ग्रुप जो था वो था प्लांटेशन वर्कर्स। इन द मूवमेंट द प्लांटेशन वर्कर्स पार्टिसिपेट विद द होप दैट दे वुड हैव देयर लैंड्स फॉर कल्टीवेशन वेयर दे वुड नॉट बी फोर्सेड टू वर्क। सो गाइज, जो प्लांटेशन, जो लोग खेती बाड़ी वगैरह करते थे, पेड़ पौधों की काश्तकारी करते, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पे था वो कहता था आपको इंडिको लगाना है, आपको कॉटन लगाना है, आपको मतलब जो है जो अहम फसलें हैं जो वहाँ पे यहाँ के टेम्परेचर के मुताबिक या यहाँ की ज़मीन के मुताबिक नहीं बताते थे, और जिनको उनको लगान देना पड़ता था, क्योंकि जो वो ब्रिटिशर गवर्नमेंट थे उनको मखसूस जगहें दिखाई दी जाती थी जो इनके ऑफिसर के अंडर रहती थी, और आम लोगों को बंदी बनाकर उनसे खेती बाड़ी वगैरह करते थे। और जो लोग प्लांटेशन वर्कर थे उन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक अहम रोल अदा किया, और उन्होंने भी हिंदुस्तान यानी कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मजबूत बनाया। तीसरा था आपको, फोर्थ वन इज़ योर ट्राइबल पीपल। ट्राइबल मींस जो खाना बदोश की साल एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, यानी कि जो लोग ट्राइबल होते हैं, जो एक जगह से खाना बदोश की हालत में जो लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, दीज ट्राइबल people joined the non-cooperation movement in hope that they would be relieved from the talukdars and landlords. Under this system they were giving high land taxes, business class. So ट्राइबल पीपल ने भी, जो खाना बदोश जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने का, उन्होंने भी काफ़ी अहम रोल अदा किया। नॉन कॉप वो चाहते थे कि जो तालुकदार थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे, उनसे उनकी ज़मीन फ्री हो जाए और उनको टैक्स देना ना पड़े। बिजनेस क्लास पीपल ने भी इसमें काफ़ी हिस्सा ले लिया। सो गाइज, हमने प्रॉपरली डिस्कशन किया। आपका क्वेश्चन ही था कि किन किन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, किन किन सोशल लोगों ने, वो कौन से समाजी ऐसे ग्रोह थे जिन्होंने अदम तावन की तहरीक में हिस्सा लिया, और किस तरह से इन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, अपनी लड़ाई को जारी रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो सबसे पहले हमने गाइज इसमें क्या पाया, मिडल क्लास पीपल, मिडिल क्लास, जिसमें हमने स्टूडेंट्स और टीचर्स और जो कॉलेज यानी कि वो लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता से। दूसरा हमने देखा गाइज, हमने देखा कांग्रेस के लीडर्स ने भी काफ़ी अहम रोल अदा किया। तीसरा हमने देखा फार्मर्स ने, फेडरल लॉर्ड्स ने, इंडियंस वर्किंग विद द ब्रिटिश ने, मुस्लिम लीडर्स ने भी। तो बहुत सारे ऐसे मतलब लोगों ने, ऐसे नेशनलिस्ट लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया। सो इन द एंड आपको कंक्लूजन कैसे करना है, आपने इसमें कहना है टू conclude this topic we can say that there are so many social groups that they have participated by all means in non-cooperation movement which was started by the Mohandas Karamchand Gandhi. So उसके बाद आपने जैसे प्लांटेशन वर्कर लिखोगे, ऑब्लिक देना है, उसके बाद पेजेंट्स ऑफ द रूरल एरियाज फिर ऑब्लिक दोगे, ट्राइबल्स पीपल फिर ऑब्लिक दोगे, बिजनेस पीपल क्लास फिर
oblique दोगे. So guys, I have discussed illustratively with you what is the exact meaning of the non-cooperation movement and what kind of how many social group that they have participated in this movement. So guys, the previous last video I have discussed illustratively with you this topic, and I hope that you have understand this topic properly. And if you have any kind of the misunderstanding, you can ask me without any hesitation and comment these videos and lectures. And heartily I request you, please share and subscribe this channel. That's why, because in future I will make like such video for you. In the end, I heartily thank you very much for this love.